سورہ الانفال شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھو، اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے، اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا الا یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے؟
سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں، یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح کے اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو، جیسا کہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، اور پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ایمان والو، اللہ و رسول سے بے وفائی نہ کرو، یہ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا، اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر، جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں، وہ یہ سازش کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا، اے اللہ، اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ
उस वक्त तो इनको अजाब देने वाला नहीं था जबकि तुम इनके दरमियान मौजूद थे, और ना उस वक्त अजाब देने वाला हो सकता है जबकि ये मगफिरत चाह रहे हों। लेकिन अब इनमें क्या है कि अल्लाह इन्हें अजाब ना दे जबकि ये मस्जिद हराम से रोक रहे हैं, हालांकि ये उसके जायज़ मुतवल्ली भी नहीं हैं। उसके जायज़ मुतवल्ली तो सिर्फ खुदा से डरने वाले हो सकते हैं। हाँ, मगर इनमें से अक्सर इस बात को नहीं जानते। ये अपनी नमाजों के ज़ोम में न रहें। हकीकत ये है कि बैतुल्लाह के सामने इनकी नमाज सीटी बजाने और ताली पीटने के सिवा कुछ नहीं है। लो, अब चखो मेरे अजाब का मजा, उस कुफ्र की पादाश में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने कुफ्र का ये रवैया इख्तियार कर रखा है, वो अपने माल खुदा की राह से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं, सो वो आगे भी खर्च करते रहेंगे। फिर ये उनके लिए हसरत बन जाएगा, फिर मगलूब होंगे, और जो इसी तरह मुनकिर रहेंगे उन सबको जमा करके जहन्नुम की तरफ हाँक दिया जाएगा। इसलिए कि अपनी जन्नत के लिए अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर सबका ढेर बनाए, फिर इस ढेर को जहन्नुम में झोंक दे। हकीकत ये है कि वही लोग नामुराद होने वाले हैं। इन मुनकिरों से कह दो, ए पैगंबर, कि अगर ये बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका है वो इन्हें मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर ये फिर वही करेंगे तो जान लें कि खुदा की सुन्नत अगलों के मामले में गुजर ही चुकी है। ईमान वालों, तुम इनसे बराबर जंग किए जाओ यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन इस सरजमीन में सब अल्लाह के लिए हो जाए। सो अगर ये बाज आ जाए तो जो कुछ करेंगे अल्लाह उसे देख रहा है, और अगर मुंह मोड़े तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है। क्या ही अच्छा मौला है और क्या ही अच्छा मददगार। तुमने पूछा था तो जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने हासिल किया था उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, उसके पैगंबर के लिए, पैगंबर के अकरबा और यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए खास रहेगा। ये अल्लाह का हुक्म है, इसकी बेचूनो चरा तामील करो अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और उस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन उतारी थी, जिस दिन दोनों गिरोहों में मुठभेड़ हुई थी। और जान रखो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। याद करो जब तुम वादी के करीबी किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर, और काफिला तुमसे नीचे था। अगर तुम बाहम वक्त ठहरा कर निकलते तो जो वक्त ठहराते उसमें लाजिमन आगे पीछे हो जाते, लेकिन अल्लाह ने कोई फर्क नहीं होने दिया, इसलिए कि अल्लाह उस मामले का फैसला कर दे जिसको होकर रहना था, ताकि जिसको हलाक होना है वो हुज्जत देखकर हलाक हो, और जिसे जिंदगी हासिल करनी है वो हुज्जत देखकर जिंदगी हासिल करे। और इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि अल्लाह समीओ अलीम है। याद करो ए पैगंबर, जब अल्लाह तुम्हारे ख्वाब में उनको थोड़ा दिखा रहा था, अगर वो कहीं तुमको उन्हें ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग हिम्मत हार जाते और मामले में इख्तलाफ करते, मगर अल्लाह ने बचा लिया। यकीनन वो दिलों का हाल तक जानता है। और याद करो जब तुम्हारी मुठभेड़ के वक्त वो तुम लोगों की निगाहों में उन्हें कम करके दिखा रहा था और तुम्हें उनकी निगाहों में कम करके दिखा रहा था, ताकि अल्लाह उस मामले का फैसला कर दे जिसको होकर रहना था। हकीकत यह है कि तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। ईमान वालों, जब आइंदा भी किसी ग्रोह से तुम्हारा मुकाबला हो
तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और आपस में झगड़ो नहीं कि इसके नतीजे में हिम्मत हार जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। साबित कदम रहो, इसलिए कि अल्लाह उनके साथ है जो साबित कदम रहने वाले हों। तुम उन लोगों की तरह ना बनो जो अपने घरों से अकड़ते और लोगों के आगे अपनी नुमाइश करते निकले, और जिनका रवैया ये है कि खुदा की राह से रोकते हैं, हालांकि जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसका हयाता किए हुए है। याद करो जब शैतान ने उनके अमाल उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और कहा कि आज लोगों में कोई नहीं जो तुम पर गलबा पा सके, और मुतमईन रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो वो उल्टे पांव चलता बना और कहने लगा कि मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो। मैं अल्लाह से डरता हूँ। हकीकत यह है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। याद करो जब मुनाफिकीन, और वो भी जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है, खुद तुम्हारे मुतल्लिक कह रहे थे कि इनके दीन ने इन लोगों को धोखे में डाल दिया है। हालांकि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अल्लाह जरूर उनकी मदद करता है, इसलिए कि अल्लाह जबरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला है। अगर तुम देख पाते तो देखते कि उस वक्त क्या गुजर रही थी जब फरिश्ते इन मुनकिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, इनके चेहरों और इनकी पीठों पर मारते हुए, और ये कहते हुए कि अब चखो जलने का अजाब। ये उसका बदला है जो तुमने अपने हाथों आगे भेजा था, और इसलिए है कि अल्लाह अपने बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं है। इनके साथ वही मामला हुआ है जो आले फिरौन और उनसे पहले के लोगों के साथ पेश आया था। उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। बेशक अल्लाह कवी है, वो सख्त सजा देने वाला है। ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत में तब्दीली न करे। नीज इस वजह से कि अल्लाह समीओ अलीम है। वही हुआ है जो आले फिरौन और उनसे पहले के लोगों के साथ पेश आया था। उन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों को झुटलाया तो बिलाखिर उनके गुनाहों की पादाश में हमने उन्हें हलाक किया और फिरौन के लोगों को गर्क कर दिया। ये सब लोग जालिम लोग थे। यकीनन अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर वो लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है, फिर किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। खासकर वो लोग जिनसे ऐ पैगंबर तुमने अहद लिया, फिर हर मर्तबा वो अपना अहद तोड़ देते हैं और जरा नहीं डरते कि इसका नतीजा क्या होगा। सो इन्हें लड़ाई में पाओ तो इनको ऐसी मार मारो कि जो इनके पीछे हैं उनको भी तितर बितर कर दो ताकि वो सबक हासिल करें। तुम लोग अलबत्ता हर हाल में अहद की पाबंदी करो, और अगर किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो तो उनका अहद उसी तरह बराबरी के साथ उनके आगे फेंक दो। हकीकत ये है कि अल्लाह बदअहदों को पसंद नहीं करता। ये मुनकरीन इस गलत फहमी में न रहें कि निकल भागे हैं। ये हरगिज हमारे काबू से बाहर नहीं जा सकते। तुम लोगों से जिस कदर हो सके इनके लिए फौज और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो, जिससे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे इन दुश्मनों पर तुम्हारी हैबत रहे, और इनके अलावा दूसरों पर भी
जिन्हें तुम नहीं जानते हो, अल्लाह उन्हें जानता है। इस मकसद के लिए जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा कर दिया जाएगा और तुम्हारे लिए कोई कमी न होगी। ये लोग अगर सुलह की तरफ झुकें, ऐ पैगंबर, तो तुम भी इसके लिए झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक वो सुनने वाला, जानने वाला है। अगर वो तुमको धोखा भी देना चाहेंगे तो मुतमईन रहो कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। वही है जिसने अपनी नुसरत से और मोमिनीन के जरिए से तुम्हारी इमदाद की और ईमान वालों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर डालते तब भी उनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें जोड़ दिया। यकीनन अल्लाह जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। ए पैगंबर, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है और यही मोमिनीन काफी हैं जिन्होंने तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है। ए पैगंबर, इन मोमिनों को उस जंग पर उभारो जिसका हुक्म पीछे दिया गया है। अगर तुम्हारे लोगों में 20 आदमी साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम्हारे 100 होंगे तो 1000 मुनकिरों पर भारी रहेंगे, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो बसीरत नहीं रखते। इस वक्त अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है, इसलिए कि उसने जान लिया कि तुम में कुछ कमजोरी है। सो तुम्हारे 100 साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम्हारे 1000 ऐसे होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर भारी रहेंगे, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसकी राह में साबित कदम रहे। इन्हें इतराज है कि तुम लोगों ने ये सब खूंरेजी कैदी पकड़कर उनसे फिदिया लेने के लिए की है। हकीकत ये है कि किसी पैगंबर के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि उसको कैदी हाथ आए, यहाँ तक कि इसके लिए वो मुल्क में खूंरेजी बर्पा कर दे। कुरैश के लोगों, ये तुम हो जो दुनिया का सरो सामान चाहते हो। अल्लाह तो आखिरत चाहता है और अल्लाह जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का नविश्ता पहले ना लिखा जा चुका होता कि अभी तुम्हें कुछ और मोहलत देनी है, तो जो तरीका तुमने इख्तियार किया था उसके बायस तुम पर एक अज़ाब अजीम नाजिल हो जाता। सो मुसलमानों, तुम इनके एतराज़ात की परवाह ना करो और फिदिया लेकर जो माले गनीमत तुमने हासिल किया है उसको हलाल और तैयब समझ कर खाओ और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। ए पैगंबर, तुम्हारे कब्जे में जो कैदी हैं उनसे कह दो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई खैर देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुमको अता फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। हकीकत ये है कि अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। और अगर ये तुम्हारे साथ बदअहदी करना चाहते हैं तो इनसे बईद नहीं, इसलिए कि इससे पहले इन्होंने खुदा से बदअहदी की है। फिर इसी का नतीजा था कि अल्लाह ने तुमको इन पर काबू दे दिया, और अल्लाह सब कुछ जानता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। ईमान वालों, इस सूरत हाल में अगर कोई मुसलमान हिमायत और नुसरत का ख्वाहां हो तो उससे कहो कि मदीना आ जाए, इसलिए कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने जानो माल से जिहाद किया है, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी और उनकी मदद की है, वही एक दूसरे के हामी और नासिर हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो लाए मगर हिजरत करके
मदीना नहीं आए, तुम्हारा उनसे हमायत व नुसरत का कोई रिश्ता नहीं हो सकता जब तक वो हिजरत करके ना आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। याद रखो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। जो लोग मुनकरे हक हैं वो एक दूसरे के हामी और नासिर हैं। इसलिए ईमान वालों, तुम अपने इन मजलूम भाइयों के लिए ये नहीं करोगे तो मुल्क में फितना और बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। ये बात अब तुम में से हर शख्स को समझ लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी और उनकी मदद की है, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए मगफिरत है और इज्जत की रोजी है, और जो इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद में शरीक हुए, वो भी तुम ही लोगों में से हैं। खून के रिश्तेदार अलबत्ता खुदा के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है।